Hey guys, finally Karan Vig is in the house. Congratulations to all of us and our whole team. पूरा एक महीना आपके पीछे भागने में मुझे गोविंद देव जी तक जाना पड़ा, भगवान का सहारा लेना पड़ा मुझे आपको यहाँ तक बुलाने के लिए एंड फाइनली मेरी सारी मेहनत सफल हुई. So thank you very much for joining and Radhe Radhe and I welcome you to Radhe Bas Radhe, Hare Baatchit. Krishna. And I think इसी बहाने आपने मंगला भी अटेंड करी. So I remember you caught me at Mangal Yeah, Aarti. I got you at Mangla only. Yes. But भगवान की वही इच्छा थी कि आप ऐसे Instagram पे follow करोगी, नहीं मिलेंगे, मेरे पास आओ तब मिलेंगे. How sweet. All right. So how is our beautiful, elegant and confident Karan Vig doing these days? I'm happy. I'm glad to be a part of this beautiful podcast to a beautiful girl called Chhaya. Thank you. So yes, I'm excited for this. Let me know, like, doing your graduation from London, then you are a teacher right now as well, and then you are one of the most leading, fashion designer of the city. So how did it all happen? Like, how do you manage all this? It was all of a sudden, to be very honest. I went to study my master's in English literature in London. So one of my friends suggested me that start using Instagram now since it's in vogue. So I was like, I don't know how to use it, and also my first post goes in London very viral, where I posted a picture of my feet wearing an anklet, and then one of my known suggested that start posting fashion events and all. I did a little bit of blogging, a little bit of modeling as well. Then one of the fashion designers called Megan O'Leary, she's from the US. She approached me and she messaged me that, would you mind coming to my fashion show in London Fashion Week? And I was really happy and I was like, why not? Yeah. Who doesn't want to go to LFW? Exactly. So that was in 2015. I went for the first time, 2016 season, and that's how I landed up in London Fashion Week, attending it. And then there was another fashion designer who invited me to her show. She was Indian, and Delna Poonawala. So I went to her show, excited to see the show openings and all. I did the cheers for her in the show, and that's how I became a part of the show as well. And did a little bit of styling for her. And yes, that was the first initial point, the breakthrough. I would say that it got me into the fashion industry. Okay. Yes. So when you were in India, like, you had no interest in fashion? I think yes, but it got bloomed under. Of course, it started through London Fashion Week, and then I got probably insight into it that why not doing it? हम क्यों नहीं करें? The fashion industry ने हमको खुली बाहों से अपनाना चालू कर दिया है. Then why not accepting it as well? Yeah. And how did teaching came along? I think I was always interested into teaching because बचपन से I had a flair of teaching. So I used to sit in my home and used to teach little toys. Little toys? Yes, that I used to take attendance as well. And that's what how were their names? I don't even know. They were all ugly names. I can't even pronounce them now. So I used to take interviews and then used to talk to them, like have a parent-teacher meeting, color concept, everything what used to be followed in school. Everything was imaginary at that point Yes, of time? imaginary. And my parents and brothers used to think that what is he doing? Then all of a sudden, I thought that I should be doing masters in English literature. Then I was a gold medalist in English. And then I did my gender studies in London. And that's what my degree is in. Oh, that's wonderful. Also, like, as I've told that you're one of the most leading fashion designer of the city right now. All of us believe that. So when did you decide that you should have your own brand after working so hard in fashion industry? I think मुद्दतों से वर्क करने के बाद ये लगता है कि खुद की एक ब्रांड होनी चाहिए, खुद का एक इमेज होना चाहिए. तो करण विग कुट्योर जब बना तो I always had it in mind कि doing something special, doing something of your own name. लोगों के different नाम के fashion brands होते हैं. So I did not want to make that famous. I wanted to make my name as an image of myself. So creating an eponymous brand label, that was one of my dreams. And so that when you're walking through, people would be wearing Karan Vig couture. So people would be wearing, and that's what happened once I went to Rishikesh. And there was a lady who was wearing a beautiful garment, and I was like, "Oh, you're wearing a lovely garment." And she was like, "Thank you so much." I said, "कहाँ से purchase किया आपने?" So they were like, somebody sent it to me through online media. And I was like, क्या brand का नाम है? वो थी कि करण विग वगैरह कुछ है, आप पीछे देखिए. So I was like, वही हूँ मैं. And that was a wonderful meeting of one of my clients. This picture goes on my Instagram as well. So if you go down, we can see it in Rishikesh memories. Yeah, that's so yes, that's how it happens. How your brand is different from any other brand?
आई थिंक मुझे सटल कपड़ों पे काम करना पसंद है, रजवाड़ा कलेक्शन पे काम करना पसंद है, जिसमें राजपूती स्टाइल आता है, जिसमें राजस्थान की कल्चर आता है और राजपूतों का कल्चर आता है, ब्यूटीफुल शिफॉन्स का आता है, यू नो हाउ टू कैरी अ ब्यूटीफुल साड़ी, और स्पेशली विद लाइट शेड्स. आई वर्क ऑन लाइट शेड्स ओनली. White is your favorite color? White is my favorite, yes. And spreading peace always. लोग कहते हैं सबके दिलों में लाल खून है, मेरे में श्वेत प्रेम गूंजता है. So उस गूंज को मैं हर जगह फैलाना चाहता ये हूँ. क्या लता जी से इंस्पायर हो गए क्या? लता जी से इंस्पायर है क्योंकि वेल उनका संगीत तो ऑब्वियसली मेरा हृदय को रोमांचित कर देता था, और आज भी जब भी कभी मैं पुराने संगीत सुनता हूँ तो सारी दुनिया छोड़ छाड़ के बस मुझे सिर्फ वही पसंद आता है. अरे वंडरफुल. और एनीवे वाइट हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट सिंस इट टॉक्स अबाउट लव, फ्रीडम, पीस, प्योरिटी, एंड जैसे अंदर है वैसे बाहर से होना चाहिए. So I think that's how I portray. That's wonderful. Also, as हमारी मुलाकात भी गोविंद देव जी में हुई है, मतलब कृष्ण भगवान के थ्रू. So I want to ask about your bond with Krishna ji. Like I have seen your keen devotion towards भगवान जी. So please let me know कि ये हमेशा से ऐसा था या फिर कोई ऐसा point आया जिंदगी में that you just incline towards it. I think ईश्वर एक ऐसा एलिमेंट है आपकी लाइफ का जो कभी खोना नहीं चाहिए, और आपके माँ बाप भी आपके बचपन से उसको इंस्टिल करते हैं आपकी लाइफ के अंदर. सो आई थिंक मैं जनता को भी यही बताना चाहूंगा कि आप दुनिया में कुछ भी कर लीजिए, आप ड्रेसअप होते हैं एवरी सिंगल डे एंड यू गेट अप एवरी मॉर्निंग एंड यू ड्रेस अप फॉर अदर्स. You wear this color because that other person likes it. You dress up in a party so that your friends like it. You go for an event because your friends want it. दूसरों को दिखाने के लिए हम certain चीजें करते हैं. तो हम लोगों ने एक माइंडसेट बना लिया है कि दूसरे को पसंद है हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं. कभी आप अपने लिए जीना नहीं सीखेंगे उसके बाद एक बार. मेरा ये मानना है कि कभी अचानक से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी एक तस्वीर ही टंग जाएगी. सिर्फ जो लोग आपके लिए सोचते थे वो शायद आपके घर पे आएंगे मृत्यु के बाद और सोचेंगे, बात करेंगे आपके लिए, फिर फैमिली वाले चाय पीने लगेंगे, बातें करेंगे, फिर पॉलिटिक्स पे डिस्कशन होने लग जाएंगे, आपकी जीवनी पे बातचीत होगी, अच्छा इंसान था, बुरा इंसान था, लोग आगे से बोलेंगे, लोग पीठ पीछे बोलेंगे, फिर आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड काम पे चले जाने लगेंगे, आपके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, फैमिली नॉर्मल हो जाएगी, दोस्त वोस्त भूल जाएंगे, और फिर पार्टीज में चले जाएंगे, फिर प्रोफेशनलिज्म में लग जाएंगे. तो किसी आने जाने से शायद दुनिया रुकती नहीं है. तो आप उन लोगों के लिए ड्रेसअप होते थे, उन लोगों के लिए जीना जीते थे जो कि शायद आपको एग्जैक्टली वो जिनके लिए शायद आप 2 महीने के मेहमान थे. ये दहेज जैसे छूटा, किसी ने आपको पूछा तक नहीं. आप एक सिर्फ तस्वीर बन के आपकी बरसी बरसी पे याद करने वाले रह जाएंगे, और दीवार पर ही रह गई आपकी जगह. तैयार उसके लिए हो जहाँ आखिर में जाना है. ड्रेस फॉर कृष्णा. यू ड्रेस फॉर कृष्णा? ओह यस. सो व्हेनेवर आई ड्रेस, कहते हैं चीरानी वस्त्रम. आप जब भी वृंदावन जाएं तो चीरों का वस्त्र पहने, लाइक नॉर्मल बेसिक कपड़े पहने. वो गॉडीनेस में रहना, वो सखियों के संप्रदाय में बनना, वो आपके बस की बात नहीं है. आप तो उनकी चरण की धूल की छोटी सी किंकरी समान भी नहीं है. तो हम लोग दास बन के ठाकुर जी की सेवा करते हैं. सो वह भाव जब तक आप में नहीं आएगा, आई थिंक आप में ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, और ह्यूमिलिटी इज द की टू सक्सेस, आई वुड से. Yeah, wonderful. You just have explained all this so beautifully. Yes. Also, गोविंद देव जी से, जयपुर के जो गोविंद देव जी है, उनसे आपका क्या स्पेशल नाता है? क्योंकि आप रोज 4 बजे मंगला आरती में जाते हैं. I have seen your Instagram. You never miss to put a story on it, and of course you never miss going over there. So ये कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करते हो? आई थिंक मेरे से काफी लोग पूछते हैं सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक तुम ऑन ड्यूटी रहते हो, वर्किंग, मंगला, देन इवेंट्स, तो सोते हो 12 से 4 की नींद लेते हो, सिर्फ वो भी सिर्फ 3-4 घंटे की ही नींद हुई. Still you stay energetic. Oh my God. आई थिंक ये कृपा ही है, और आई थिंक ये माँ बाप एक ऐसे बीज बोते हैं आपकी लाइफ के अंदर जो जिंदगी भर के लिए शायद आपको एक ज्ञान दे जाते हैं. तो इसीलिए मेरा एक टीवी स्क्रीन के माध्यम से और इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक छोटी सी यही अर्जी है कि शायद अपने माँ बाप को कभी ना भूलें आप लोग, क्योंकि दे आर द वंस हु प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन योर ग्रोइंग अप. कि माँ बाप, जो माँ है एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो मार्केट में कभी नहीं मिल सकती. और आपको फेम कहीं से मिल जाएगा, पैसा खोया है फिर कमा लेंगे,
माँ बाप को वापस नहीं कमा पाएंगे। आई थिंक जिनके पास हैं उनकी सेवा करिए, उनका साथ दीजिए, दुख सुख में उनके साथ बैठिए, थोड़ा समय उनके लिए निकालिए और थोड़ा समय उनके साथ बिता के अपने दिन भर की बातें बताओ उनको। वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा काम से आएगा और हमारे को पूछेगा। एंड टुडे आई डोंट सी सच थिंग हैपनिंग। मतलब बहुत मतलब करियर बनाने के चक्कर में भी मूव आउट ऑफ अ प्लेस। वैल्यूज पहले हम कहते थे कि माँ स्कूल नहीं जाना, आज हम कहते हैं कि माँ काम से छुट्टी नहीं मिल रही, तो एक कॉल नहीं कर पाते अगर हम शहर से दूर रह रहे हैं तो वो बर्थडे से माँ बाप की नहीं जाना और एनिवर्सरीज को विश नहीं करना। सो आई थिंक माँ बाप को ना भूलें तो इंसान इंसान कहलाएगा, rather than sending them to वृद्धाश्रम or rather than sending them back to home and staying there, you should help them up and तब आप शायद खिल के एक विकसित फूल की तरह सामने आएंगे। How is your bond with your parents? Very strong, very strong. I think मैं तो अपने माँ बाप के बिना अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकता। मैं तो सोचता हूँ मैं तो सती हो जाऊंगी। Also, what were their point of view over your sexual preferences over the period of time? I think sexual preferences को तो समय लगा समझने के लिए, लेकिन धीरे धीरे माना, एक्सेप्ट किया और इतना भी उनकी तरफ से हेट्रेड नहीं आता जितना मैंने कई मेरे भाई बंधुओं की देखा है रिलेशंस के अंदर। I've seen many community people getting upset about it and they're very scared to live the life they should live like. And I feel pity for them because वो खुल के सामने नहीं आ पाते। माँ बाप से scared हैं to talk about their own sexuality, to live their own lives. तो I have few friends of mine, they are like, Karan, जब मैं open होऊंगा, जब मैं out of closet आना चाहूंगा, I want you to be sitting right there in front of me to talk to my parents. Oh my God. I said I'm always available, but घर से शुरुआत तो करिए। I think community के अंदर लोगों को जब तक खुद बातचीत करना चालू नहीं करेंगे, खुद लोगों को समझाना चालू नहीं करेंगे, I don't think कि कुछ बदलाव आ सकते हैं। What do you think? How can we educate the society regarding LGBTQ community? आई थिंक एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जो मैं हमेशा उठाता हूँ, क्योंकि जैसे इंस्टाग्राम पे एक रील वायरल हुआ था कुछ दिनों के उपरांत कि एक लड़की है, वो होमोसेक्सुअल्स के अगेंस्ट बहुत बातें बोल रही है, वो शास्त्रों से उठा रही है पॉइंट्स को और बहुत चीज़ें बोल रही है। तो उसमें कई कम्युनिटी के लोगों ने, LGBTQ कम्युनिटी, उन्होंने बहुत गलत बोला है उस लड़की को। तो अगर आप पे कोई पत्थर मार रहे हैं या कीचड़ उछाल रहा है, आप भी कीचड़ से ही उसका आंसर देंगे, तो आई डोंट थिंक दिस इज लाइक एन आई फॉर एन आई हो गया, राइट? तो फिर वो तो सब पूरा वर्ल्ड अंधा हो जाएगा। rather than telling them off this way, you should be talking to them educatedly. आप आंसर दीजिए उसको, आंसर दीजिए, मना नहीं है, तरीके से आप उसको समझाएं, दूसरे को बुझाएं। ये नहीं कि आप गलत शब्दों का प्रयोग करके उसको नीचा दिखाना चाहे, तो फिर तो उनको तो अपॉर्चुनिटी मिल जाता है बोलने के लिए, देखिए द गे कम्युनिटी इज दिस वे ओनली। तो हम एक कम्युनिटी को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, I don't think our community can grow this way. Yeah, exactly. I don't say that our community is not educated. There are indeed thousands and hundreds of people who are educated and who are working for the community. Wonders. Yes. Oh my God. So the whole community should come together towards educating. आप जैसे लोग जो podcast बनाते हैं ताकि लोगों को समझ में आए, because the present generation, I teach to my kids. तो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, I think they are very well versed about the term LGBTQIA++, the umbrella terms and all. Now when they move out of the society, they're going to be the posterities of future. Yeah. I'm definitely sure they're going to respect the LGBTQ community. Yeah, indeed they are going to, because you are educating them. Yes. And they know things through all the perspectives. This is the point which comes into the matter of fact that if you are educated, I think you can change the world. Yeah, indeed. A pen of a writer can change the whole world. Indeed. Rather than speaking ills about anyone else, you should speak the truth. Yeah. In a better way, rather than speaking in a better way. Yeah. I hope कि लोग ये सुनने के बाद थोड़ा तो यहीं से educate होना शुरू हो जाएंगे. Correct. Yeah. Also, as you have been in abroad for a very long period of time, so वहाँ पर acceptance for the community and यहाँ पर acceptance for the community में क्या difference आपने खुद realize करा? बहुत ज़्यादा है। I think मैं अगर विदेश ना गया होता तो I would not have been able to come out that openly that I am today. So yes, it gives you a little breathing space
where people here would literally turn around and look at you. They will Yeah. literally give you looks. Yeah, They will literally think about you twice, and rather women as well. I thought the women would be supportive of the gay community, but ऐसा सीन नहीं है. कई women बहुत अभद्र कमेंट्स करती हैं सोशल मीडिया पे. और कभी कभार तो सोच के लगता है कि क्या ये वही स्त्री है जो रिस्पेक्ट करना चाहिए जिसको. तो फिर हम लोग को लगता है चलो मेल कम्युनिटी तो फिर भी चलो एक्सेप्ट करने में टाइम थोड़ा लगाती टाइम है, लगाती है. बट फीमेल्स एज वेल. देन आई फील लाइक आपको खुद को इतने सफ्रेजेट्स मूवमेंट्स करके इतना सक्सेसफुल लाइफ मिली है और आप लोगों ने भी लड़ाई करी है, तो जब हम लोग सेक्शन 377 के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो साथ क्यों नहीं देते. Exactly. या फिर ये है कि दूसरे के पट्टे में टांग नहीं अड़ाना है. सो आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कुछ हो सकता है. फिर वही बात होगी एन आई फॉर एन आई. Yeah. तो But that won't help anybody. exactly it doesn't, and that's how people should learn that rather than thinking अब विदेश में और भारत में अंतर क्या है. The main point is education again. Education It and comes, thought it boils process. up to point zero that if you're educated you will live and let live. Yeah. यहाँ भी हैं कई इतने एजुकेटेड लोग जो कि शायद आपको अगर साड़ी में देखेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे. मैं ये नहीं कहता कि एक कम्युनिटी ऐसी होती है जिसपे हम लोग डिपेंडेंट होकर हम पूरी कम्युनिटी का नाम खराब कर सकते हैं. ऐसा नहीं है. हर कम्युनिटी में 4-5 लोग तो अजीब से होंगे ही. बट द मेन पॉइंट कम्स अप व्हेन वी गो आउटसाइड अब्रॉड. पीपल स्टिल, ऐसा नहीं है कि विदेश में नहीं देखते होंगे, वहां भी देखते हैं, बट in comparison, yes, the number is less. Yeah. All right. So where do you see the future of India for the LGBT community? Like acceptance का स्तर बढ़ता जाएगा या फिर same pace will be happening? I think किसी को मालूम ही नहीं था कि सेक्शन 377 would be approved and bigotry laws होंगे या फिर property laws होंगे या फिर adoption का होगा. धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं और बदलाव में समय लगता है. आई थिंक जब भारत को इंडिपेंडेंस लेने में ही 100 साल लग गए तो ये तो एक लॉ चेंजिंग है. ये तो एक कम्युनिटी की आजादी है. कम्युनिटी को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना भी छोटी बात नहीं है. सो आई थिंक होगा. इट्स ऑल इन गॉड्स हैंड. या टच वुड. यस, क्रॉस योर फिंगर्स. समझ होगा. आल्सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन फॉर द सेम सेक्स मैरिज? सुप्रीम कोर्ट सबके लिए माननीय है और सम्मानीय है. तो हम लोग उनके विचारों का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. बट कहीं कहीं दिल में चूक रह जाती है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक लैंड वेयर द डेमोक्रेसी इटसेल्फ सेज दैट द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल. सो बट फॉर द पीपल तो हुई नहीं ना. फिर बाय द गवर्नमेंट हो गई. बाय द गवर्नमेंट ही है. So I respect whatever they are saying, but the bench has a ratio of 3:2 का. So धीरे धीरे ही सही, अभी 2 हैं, कल को 3 हो जाएंगे, तो 1 नंबर का ही तो रेशियो का डिफरेंस है. And I guess society will take time to accept it because अगर आज थोड़ा एक्सेप्ट किया है तो आगे जाके एक्सेप्ट होगा और ये बिल भी पास होगा. करेक्ट.